अब पूछिए। सर कल हमने जो ग्रोइंग के एरिया में कपिंग करने की बात की ना सर, हाँ तो उसमें पीसीओडी पीसीओएस भी वो अच्छी हो जा निकल जा हाँ, सकते यस हैं। यस, वही तो उसमें हमने और यूट्रस, ओवरी, जेनिटल पार्ट सब ओके। पर वर्क होगा उसमें। और सर दूसरा उसमें फर्टिलिटी के लिए भी फायदा हो सकता है सर। या फर्टिलिटी के लिए भी, ऑल द प्रॉब्लम विच इज कनेक्टेड विद द यूटरस एंड मेल एंड फीमेल जेनिटल पार्ट इंक्लूडिंग ओवरी, पीसीओएस, फैलोपियन ट्यूब, इनफर्टिलिटी, सब पर काम। सर स्पाइनल स्टिनोसिस। हाँ, वो स्पाइनल स्टेनोसिस में तो हम वही लोअर बैक में कपिंग करेंगे ना। देखो, अलग अलग नाम से हम लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ वही करना है। सर दूसरा एक क्वेश्चन है सर, डाइजेशन के लिए भी हमने जो किया था कल हमने कपिंग। बताया था जी। हाँ तो सर इसमें उसमें मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो सकता है। यस डेफिनेटली, बढ़ेगा ही। और मेटाबॉलिक रेट तो जब हम वेन एवर वी आर डूइंग कपिंग ऑन द back points on the back side of the spine, immediately metabolic rate will improve. You can check the आप पल्स को चेक कर सकते हैं, metabolic rates will improve immediately 1 minute. So now सर अगर कान में पर्दे में छेद हो तो हम कपिंग कर सकते हैं? देखो, कान के पर्दे को हमने कई लोगों का ठीक किया है। कैसे? क्योंकि पहले हमारे पास कई पेशेंट आते थे कि कान के पर्दे में होल है, तो हमने पहले तो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग हाउ कैन बी वर्क ऑन द होल ऑफ द ईयर, इट लुक्स लाइक डिफिकल्ट. Then one of my senior Bedyaji, Bedraji used to give skin medicine. Then I asked, how can you heal the whole of the ear? He told, the ear drum is like a skin. You can make it again. So he used to give 2 tablets. Number one, Kashur Gugulu, and number two, Arogya Vardhani Vati. And just by these 2 tablets, Kashur Gugulu and Arogya Vardhani Vati, we found many patients are getting benefit. बहुत पेशेंट को आराम मिल रहा है। और फिर देखा कि होल भी भर गया। तो जनरली क्या होता है, ये कान के होल की कहानी बड़ी अलग है। कैसी अलग है? So person is getting hole in the ear. One person is getting hole in the ear. Let me complete this, then you ask another question. First, let me complete this discussion. Then we'll discuss another question. सर ये माइग्रेन की वजह से हो सकता है? एक एक मिनट रुकिए, पहले एक चीज कंप्लीट करेंगे फिर आगे बात करेंगे। देखिए, so what is happening, if we talk about the ear, अगर हम कान की बात करते हैं, so ear is having 3 parts: external ear, external ear, then the middle ear, then the internal. So the middle ear is connected with the throat cavity. हमारे गले से connected है, throat से connected है, with the help of one pipeline that is called eustachian tube. So the person is suffering with a frequent cough and cold. With the help of this eustachian tube, गले की पाइपलाइन के माध्यम से उसके कान तक कफ पहुंच जाता है। The cuff is reaching till the middle ear. Then person is getting infection and the pus discharge from the ear. So when the person is getting infection, it creates ear hole. तो ear hole पैदा हो जाता है। तो हमने जब ये मेडिसिन दी लोगों को, कैशोर गुगलू और आरोग्य वर्धनी बटी,
2 tablet twice a day. It's very effective. खाना खाने के बाद पानी से. Then we start searching something good in the acupuncture. Yes, we found very good points. There's a leg rapid horses. हमने acupuncture में पाया कि हमारे पास बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है. इन बिंदुओं का नाम है leg rapid horses. The leg rapid horses are the point of master tongue acupuncture. So we are putting the leg rapid horses 2 times in a week or 3 times in a week. हम या तो 2 बार या 3 बार इन्हें लगा सकते leg rapid horses. So we can see this. This is the leg rapid horse. We will draw a line. We will draw a line from here, from this part. This is the anterior superior iliac spine. From this part till the lateral angle of the. From this part, this is the anterior superior iliac spine. From this part till the lateral angle of the knee. So if we draw a line like that, that is stomach meridian. Okay. Now can you can leave it? Now, one another method to reach stomach meridian. Now, you touch your middle finger here. The tip of the middle finger on the gallbladder 31. In Master Tongue, we are telling this 88.25. So this is the middle finger on the gallbladder 31. Now leave the hands. So from this point, if you are coming 3 chun anterior, how many chun anterior? 3. This is again stomach meridian. So stomach meridian we can find out in 2 ways. Either we can draw a line from anterior superior iliac spine till lateral angle of the knee, or we can come 3 chun anterior from the gallbladder meridian. So this is our stomach meridian. Now what we are going to do, again, we are touching the middle finger here. This is the gallbladder 31 or 88.25. Now, at this level, if we draw a point here over the stomach meridian, and we are drawing a 2 more point. 1, 2 chun up. Second, 2 chun down. So we have 3-point unit here, 1, 2, and 3. These 3-point units are called leg rapid horses, and these 3-point combination are very wonderful for all the problems related to the lungs. And we know lungs treat skin disorders. So these 3-point units are very good for lungs as well as skin. So we are treating all the problems related to the lungs, pneumonia, asthma, bronchitis, and any condition which is connected to the lungs, as well as treating the skin problem like psoriasis, eczema, any problem which is connected to the skin. So we can put needle here. 1, 2, and 3. So in that way we can put needle here. We can put 1.5 to 2 chun needle here. So these are the 3-point unit. So now It in is the very cupping, what we do, wonderful for in the treating all cupping, we the- can do the cupping in that area. Cupping में हम क्या करते हैं कि हम थाई में cupping कर सकते हैं and we can activate the stomach meridian. Now, and we already have discussed earlier that 2 cups, 1 cup on the back side, 1 cup in the front side of the ear, 2 cup here. So we can add this. So we can combine our knowledge. We can combine some acupuncture point and with the cupping, and we can achieve the results. So this is about the ear hole. Ear hole can be healed. In my practice, I have seen many persons got very good results. Okay, any other question? सर वो लास्ट पेज दिखा दीजिए ना. कौन सा लास्ट पेज? स्लाइड सर, स्लाइड जो लास्ट आपने लिखा था ना वो. अभी तो स्लाइड कहाँ दिखाया हमने? अरे सर आपने लिखा था वो दवाई का नाम आयुर्वेदिक. वो तो गायब हो गया, मैं बोल देता हूँ, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। ओके.
Sir, Yes. for ये भी अच्छा kyphosis and upper thoracic pain, sir. Yes, what? For kyphosis and upper thoracic pain. You tell me what to do. I already have discussed. Sir, 1 minute, 1 minute. Let this हाँ. finish. See, I already told you yesterday that we have to do the cupping in the local area. If the person is having neck pain, upper thoracic, lower back pain, we have to do the cupping in that area, in that respective area. One more thing, if the pain in the thoracic area, like a pain in the mid scapular area, अगर दर्द दोनों स्केपुला के तो कई बार ये दर्द होता है स्प्लीन के कारण, अर्थ एलिमेंट के कारण. So we always balance earth element. So but we do the cupping on the dynamic cupping on the spine and the entire spine, because the dynamic cupping is very good to balance spleen, stomach, and earth element. So thoracic pain can be treated with the help of this. In the cupping, what we do, we can target the local area. That's the beauty of cupping. But the important thing is this: even the person is having knee pain, we can do cupping in the lower back, and we can see the improvement in the knee in this way. तो आप thoracic area में करिए cupping, right? सर एक Thank you. क्वेश्चन था हाँ. कि जैसे अगर हम जल नेति करते हैं तो कान के यहाँ पर पच पच ऐसे, तो वो भी हम कपिंग से ठीक कर सकते हैं. जब जैसे मैं जल नेति करती हूँ तो मेरे लेफ्ट ईयर में जब व्हेन आई एम ब्रीदिंग आउट, लाइक कपालभाति के जैसे ब्रीद आउट करना होता है ना, तो वो उसमें यहाँ पे दर्द भी होता है लेफ्ट ईयर में, और पच पच ऐसे वाटर की साउंड आती है. तो फिर मैं उसको वो जो साउंड आता है वो जलनेती के समय आता है कि कपालभाति के समय आता है? नहीं, जल नेति करने के बाद कपालभाति के वक्त. नहीं नहीं, हाँ, तो वो सबको आता है, वो नॉर्मल है. अच्छा, कि और अगर उसके आप लिए अगर आप देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप कपालभाति करो, हाँ राइट, कपालभाति करते हो ना, if you do the kapalbhati, you are forcefully exhaling, so हाँ the eardrum is also moving because our throat and the eardrum is connected. It's a ठीक normal, है. it's a normal. तो वो लेकिन मैं हाँ, तो उसके लिए फिर मैं क्या सिंपल सा करती है, so you do kapalbhati in that way. You do kapalbhati in that way, so that is the even it happened with me. कई बार मैंने जलनेती के बाद मैंने खुद बहुत ज्यादा forceful कपालभाति की, तो कान के पर्दे ऐसे से होते हैं. That's the normal thing. तो एक और बात सर, फिर मैं उसके लिए क्या करती हूँ कि मेरे जैसे हाथों का वो सक्शन बना के, एंड आई एम डूइंग लाइक दिस फॉर हाँ, 1.5 मिनट. और ठीक है, secondly, उसके बाद नहीं आता. यस, कपालभाति के समय ही कान के पर्दे को बंद रखो, ऐसे के ढक्कन को बंद रखो, तो भी नहीं होगा ऐसा, या कम होगा. तो फिर वो जो कॉफ जैसा सिस्टम है ना, वो मेरे थ्रोट में आ जाता है, एंड आई एम स्पिटिंग दैट. तो लेकिन मैं आपसे क्या जानना चाह रही हूँ अभी कपिंग की क्लास में, कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कपिंग किसी एरिया पे करके, जैसे कि वो जो पेन होता है ना उस वक्त वो रिलैक्स हो जाए या फिर खत्म हो जाए? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तो कर सर सकते कहाँ पे की जाए हैं. कपिंग? लेकिन सबसे पहले मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हर चीज इसके लिए तो आपको बस ईयर ड्रम को बंद करना है. क्या हो रहा है कि आप जब फोर्सफुल एक्सलेशन कर रहे हैं, सो व्हेन यू आर डूइंग फोर्सफुल एक्सलेशन, राइट, तो जब आप यस. फोर्सफुल एक्सलेशन करते हैं तो आपका ईयर, मिडिल ईयर थ्रोट से कनेक्टेड है, इट्स कनेक्टेड विद द थ्रोट, सो द ईयर, दैट्स व्हाई ईयर ड्रम इज हो रहा है. तो सिंपल सा, बस इसको बंद रखिए, कपिंग की जरूरत ही नहीं है. लेकिन फिर भी आपको करना है तो एक कप यहाँ लगाइए, एक कप यहाँ लगाइए. लेकिन जनरली बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल होती हैं. इट्स ए नॉर्मल एंड नेचुरल. क्योंकि जब आपको देखा है कि आप फ्लाइट में गए और फ्लाइट में जाने के बाद आपके कान बजना चालू हो गए, राइट, तो क्या करो, मुंह खोल के बैठ जाओ. लोग फ्लाइट में आजकल तो प्रॉब्लम नहीं आती वो, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले
ત્યાંથી थोड़ा सा આવું પછી મેં કીધું કે देखो સારું सर પડે. अब भी आती है, बहुत सारे लोग रोने लग जाते हैं। पहले से कम आती है, ये तो हाँ, रिसर्च अब भी बहुत सारे लेडीज जो स्पेशली वो रोने लग जाती हैं, दे स्टार्ट मीन्स उनकी आंखों से आंसू आने लगे, देन आई एम टेलिंग देम ओके च्यू समथिंग लाइक दिस, प्रिटेंड लाइक दिस च्यूइंग, सो इट आप गेट जब रिलैक्स। 15 साल वाला पहले वाला जर्नी देखेंगे ना, और आज की जर्नी में बहुत अंतर है। अभी फ्लाइट के प्रेशर को वो लोग थोड़ा सा मेंटेन करते, भी एडवांसमेंट हो गए, पहले तो बहुत ज्यादा होता था। ये बातें कौन कर रहा है जी? पहले तो ऐसा बहुत ज्यादा होता था, अभी भी आती है, पहले से कम आती है, लेकिन आती है अभी भी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप हाइट पे जाएंगे, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो फिर ऐसा फिर कान बजने लगते हैं। तो उसके लिए सिंपल है, वो च्युइंगम जैसे आपने खाना बताया, तो वही सिंपल सी बात है कि कान को दबा के रखो, ताकि कान का ईयर ड्रम मूव होना बंद हो जाए। कपालभाति के समय तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, लेकिन इन केस ऐसा है तो यू कैन डू 1 cup हियर 1 cup हियर, दैट्स आल्सो गुड। तो ये जो दर्द होता है दैट इज नॉर्मल, थोड़ा थोड़ा लिटिल एब्सोल्युटली लिटिल नॉर्मल, पेन होता किसी है, को भी हो सकता स्लाइट। है। अब कोई फ्लाइट में गया, उसको कान के पर्दे बजने लगे, वो नॉर्मल है ना? ठीक ऐसे ही ये नॉर्मल है। जब आप फोर्सफुल एक्सेल करते हो तो कान के पर्दे हिलते हैं, पर्दा मतलब ईयर ड्रम मूव होता है। Sir, even in high altitude also there is आपके कान ऐसे ये हो जाते हैं, sir. या बिकॉज When ऑफ you द go to higher places. same in the flight, same in the high altitude, on the very height. So because of the negative pressure, because of the low pressure, कान में आवाज आने लगती है, कान के पर्दे बजने लगते हैं, अनइजीनेस लगती है लोगों को। दैट्स ऑल आर नॉर्मल। अब सर हमारे पास थैंक तो यू। पेशेंट का मतलब है कि पेशेंट ऐसे आएंगे आपके पास कि टिनिटस होता है, रिंगिंग साउंड ऑफ द ईयर, दैट द चैलेंजिंग पेशेंट, राइट? उसके लिए आपको बहुत फोकस करके ट्रीटमेंट करना होगा। ओके, तो अभी सर वेरिकोज वेन्स के लिए भी बताएंगे? वैरिकोज वेन्स के लिए कपिंग का कोई इतना रोल नहीं है, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, बट इनडायरेक्टली रोल है। इनडायरेक्टली कैसे रोल है? If we do the dynamic cupping on the back, we can strengthen the spleen, right? Because varicose veins is connected with the spleen. But in the area of varicose vein, we can't do cupping. किसी को जहां वेरिकोज वेन है आप वहां कपिंग नहीं कर सकते, या कम मात्रा में अगर उससे वेरिकोज है, then you can put the cups very gently because the varicose veins, the root cause of the varicose veins is the disharmony of the weak valves inside the veins. तो उसके लिए हमें स्प्लीन को स्ट्रेंथन करना होता है, तो डायनेमिक कपिंग करके ऑन द बैक वी कैन स्ट्रेंथन द स्प्लीन। और फिर जहां पर वेरिकोज वेन है, वेरिकोज वेन 2 प्रकार की होती है, लुक एट हियर। I will show you one page of varicose vein. So varicose vein is because of the prolonged standing, like, and maybe because of the chronic constipation, because of the pregnancy, there are many causes. The cardiac patient will develop varicose veins also. So in the varicose vein, first we do dynamic cupping. Over spine. Second, we do very gentle cupping and no dynamic, no moving cupping over local area जहां पर वेरिकोज वेन है। सो वेरिकोज वेन 2 तरह की, एक तो बहुत बारीक बारीक वेन्स, very very thin vein, and one is thick vein. So if the very very smaller vein, it is called spider vein, इसे हम कहते हैं spider vein. The thick vein is called varicose vein.
So we are doing cupping on the spider vein. But on the varicose vein, we have to do very gentle cupping. While doing the cupping, make sure there should not be accidental puncture. Many times doctor doing puncture of the varicose vein to take out the blood. तो फिर उसका मेथड है कि आप वेरिकोज वेन में पंक्चर करके उसका ब्लड निकालो, वो भी किया जाता है क्योंकि वेरिकोज वेन के अंदर डेड एंड ब्लैक ब्लड भर जाता है. So the many doctors are doing the puncture of the varicose veins to take out the blood, but that is not the cupping. Okay. So we have to do in that way. जैसे एक बार क्या हुआ कि एक हमारे एक पार्टिसिपेंट ने स्पाइडर वेन के ऊपर डायनेमिक कपिंग की, तो उसकी स्पाइडर वेन पंक्चर होके वहां से ब्लीडिंग चालू हो गई. तो पेशेंट को उसका दर्द कई दिनों तक बना रहा है ना. So we have to put the cup and we have to do very gentle treatment here. Then you can do. सर अगर लेग्स में जैसे फ्लैश कम हो जाता बिकॉज ऑफ डायबिटीज लेग्स में और हैंड्स में, तो फिर हम लोग डायनेमिक कपिंग करेंगे वहां पर लेग्स पे और हैंड्स पे, तो वहां पे सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो इट विल हेल्प. Yeah, dynamic cupping, yes, definitely can be done to improve the circulation anywhere. तो जब भी हम कपिंग करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है कि स्किन के अंदर जब भी हम कपिंग करते हैं तो हमारी स्किन के अंदर मास्ट सेल का सीक्रेशन होता है. मास्ट सेल, मास्ट सेल आर द सेल improve our immunity. ये हमारी वो सेल है जो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है. मास्ट सेल. सपोज आई एम डूइंग कपिंग हियर, द स्किन बिकम रेड, स्किन लाल हो जाएगी और वहां पर हमारी मास्ट सेल का सीक्रेशन होगा. राइट. सो दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव. सर मुझे एक और भी बात वन पूछनी थी. मिनट, मैंने एक मिनट रुक जाइए. जब आप प्रश्न पूछते हैं तो आपको फिर पहले इंतजार करना चाहिए अगले प्रश्न के पूछने तक. राइट. आई वांट टू शो यू समथिंग. या okay, look at this page. So what I want to bring a focus here. Actually, the long theoretical explanation, I will highlight few things. मैं कुछ चीजों को हाईलाइट करूंगा. एक्चुअली आर्टिकल है जो मैंने पढ़ा था, एंड रियली इट इज वेरी गुड आर्टिकल. So number 1, skin are displaced. Skin are displaced. इसका मतलब क्या है, जब हम कपिंग करते हैं तो स्किन को हम खींचते हैं, and skin are displaced from the underlying structures, like skin are displaced from muscle, skin are displaced from fascia. और हमारी स्किन के अंदर होते हैं मैकेनोरिसेप्टर. मैकेनोरिसेप्टर का मतलब है कि they are sensing our activity, so they are secreting histamine, nitric oxide, activate mast cell and doing the vasodilatation. वहां की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, उनमें ज्यादा, उस एरिया में ज्यादा ब्लड आता है, उस एरिया में मास्ट सेल का सीक्रेशन बढ़ता है, उस एरिया में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है, उस एरिया में हिस्टामिन बढ़ता है, उस एरिया में हिपेरिन बढ़ता है. जब हम किसी भी एरिया में डायनेमिक कपिंग करते हैं या नॉर्मल कपिंग भी करते हैं, स्पेशली डायनेमिक कपिंग, बट इवन नॉर्मल कपिंग,
तो ये सारी चीजें बढ़ती है, राइट। तो इसीलिए व्यक्ति को काफी इम्प्रूवमेंट मिलता है. The person is getting many improvement. In this article, this is also written, कपिंग नीचे से ऊपर करो तो एक अलग इफेक्ट है, ऊपर से नीचे करो तो एक अलग इफेक्ट है. तो क्या इफेक्ट है भाई? अगर किसी व्यक्ति का के नीचे से ऊपर करते हो कपिंग, लाइक वी आर डूइंग कपिंग ऑन द बैक साइड और वी आर डूइंग कपिंग इन द लेग्स, if we are doing cupping towards the upper side, we are doing cupping towards the heart, it will improve the energy, it will be very good for everyone. But if the patient is having high blood pressure, then do downward cupping, because maybe sometime it might increase the blood pressure. Actually, I have not noticed this, कि हमने कभी नोटिस नहीं किया ऐसा कि बीपी बढ़ा हो, लेकिन लोगों का एक्सपीरियंस है तो उसे हम वैल्यू देना चाहिए. सो इट इज रिटन वर्क कॉर्डेड टू सेफेलेड, यानी नीचे से ऊपर जाओ और नीचे से ऊपर जाकर जाते हुए कपिंग करो. ओके, देन वर्क सुपरफिशियल टू डीप, पहले कप को थोड़ा सुपरफिशियल लगाओ, फिर थोड़ी देर में और उसे वैक्यूमिंग क्रिएट कर दो, go deeper, right? So in this way, our purpose to do the cupping is not only stimulate the area, but to stimulate the fascia. हमारा पर्पज है वहां के फेशिया को स्टिमुलेट करना, राइट. फिर इसमें एक बात आती है कि हमारे शरीर में कई सारे, जब हमने पीठ पर कपिंग की या कहीं भी हमने कपिंग की, उन कपिंग के बीच बीच में म्यूट जोन्स होते हैं. म्यूट जोन का मतलब है रियल पॉइंट, रियल एरिया और द वीक पॉइंट विच विल क्रिएट वेरी गुड इफेक्ट. तो समझ गए आप? या इसके अनुसार नीचे से ऊपर कपिंग ज्यादा गुणकारी है. नंबर 2, जब हम कपिंग करते हैं तो पूरे एरिया के बीच में म्यूट जोन भी एक्टिवेट होते हैं, जो रियल एरिया होते हैं. म्यूट जोन मतलब वो हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट है बीच बीच में जो आते हैं. कपिंग स्किन को अलग करती है और नीचे जो गैप होता है तो ऊर्जा को बहने के लिए रास्ता मिलता है. इट रिमूव द ब्लॉकेज. इट्स अ वंडरफुल थॉट. So that's why whenever we are doing cupping, skin become red. It is improving the blood circulation. There are capillaries now having more blood, और उन capillaries में ज्यादा blood है पहले की तुलना में, right? Capillaries are filled with the blood. Capillary in the blood we are having mast cells, we are having histamine, we are having heparin. So that's why now it will work very nicely. तो जिस एरिया में हम कपिंग करते हैं उस एरिया में हम एक तरह का मैसेज देते हैं कि भाई इस एरिया में आकर हीलिंग करो. तो जनरली हमारे शरीर में कहीं इन्फेक्शन होता है ना, इन्फ्लेमेशन होता है, तो हमारी बॉडी उसे हील करती है, लेकिन यहाँ हम बोलते हैं कि यहाँ आके हील करो. सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड, राइट. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर एक और बात पूछना था, जब मैंने अमेज़न पर सर्च किया ना तो वहां पर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कप मिला, जिसमें बैटरी ऑपरेटेड, विच विल गिव अस हीट, रेड वेव्स, रेड एनर्जी, रेड लाइट एनर्जी. तो वो कैसा है सर? फ्रैंकली आई डोंट नो अबाउट दिस. तो वो हीट जनरेट करता है. दे वर मेंशनिंग इट जनरेट्स द हीट एंड इट विल स्टिमुलेट. आप देखिए, आप थोड़ा सा खुद रिसर्च करिए इस पर. मतलब कुल मिलाकर अगर हमारे कपिंग के सारे इथिक्स को वो फॉलो करते हैं, नो प्रॉब्लम. और एक और बात पूछना था सर, जो इससे जैसे सैगी स्किन हो जाती है यहाँ पर, लाइक इस तरह यहाँ पर, तो वो कपिंग विल वर्क और नॉट? Actually, for everything cupping will not work. For the saggy skin, what is the meaning of saggy skin? हमारे यहाँ पर क्या है, स्किन है और मसल्स हैं, है ना? हाँ. मसल की टोन बढ़ानी पड़ेगी. क्या बढ़ानी पड़ेगी? फैट बर्न करने के लिए. तो सर फिर कपिंग विल इफेक्ट और नॉट? फैट बर्न के लिए कपिंग बहुत अच्छा काम करेगी. तो यहाँ पे तो जो सैगी स्किन है वो फैट बर्न नहीं, तो फैट्स ही तो है. Saggy skin is not the fat. Saggy skin the low muscle tone.
अच्छा जैसे वो जो लटका उदाहरण हुआ उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिम जाता है, one person is going gym. After going to gym, he is developing biceps and he is developing triceps, right? Now, if the person is not going gym and it is hanging down, that is a saggy, right? Fat अलग चीज है। So belly तो fat, जब हमारी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल लूज हो जाए, लुंजपुंज हो जाए, ढीली पड़ जाए, उसे कहते हैं सैगी एरिया, राइट? तो आपको जाकर उस एरिया की मसल टोन बढ़ानी पड़ेगी। आई विल गिव वन मोर एग्जांपल कि मैक्सिमम फीमेल्स में आप देखोगे कि सैगी ब्रेस्ट, यस हैंगिंग डाउन। तो क्या करना पड़ेगा? ये मसल की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मसल की पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस माइनर मसल की टोन बढ़ानी पड़ेगी। सेम फॉर एब्डोमेन, कि पेट लटक जाता है नीचे की, ऐसे झूलने लगता है पेट नीचे। अगर आप फैट कम करने का पूरा प्रोसेस करते रहो, टेम्परेरी फायदा मिलेगा। तो फैट बर्न भी करना है, साथ में क्या करना है कि वहां की Exercise. मसल टोन बढ़ानी है, मसल्स। तो मसल टोन बढ़ेगी तो वो मसल क्या है, पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना। अब आप मसल को यूज ही नहीं कर रहे हो, तो मसल ने, वहां के लिगामेंट्स ने अपनी ग्रिप छोड़ दी, तो चीजें नीचे लटक जाती, राइट? एज पर द एक्यूपंक्चर also, spleen is very much important and we can strengthen the spleen for this purpose, because spleen is having connection with the muscles also, but exercise play important role. गॉट इट सर। so Thank you. belly fat can be reduced by cupping. क्या चीज? Belly fat, Yes, definitely belly fat can be reduced with a cupping, but dynamic. no one can reduce the belly fat without doing diet control. आप इस दुनिया के कोई भी उपाय कर लो, आप चाहे 6 घंटे जिम जाओ, आप चाहे कुछ भी करो, जब तक डाइट कंट्रोल नहीं होगा तब तक वेट कम नहीं होगा। Cupping how is तो thrice a now, week. 1 मिनट Yeah. यार, आप लोग प्रश्न पूछ के इंतजार नहीं करते, है ना? Sorry sir. तो ना, ओके। तो क्या होता है ना कि बिकॉज दिस इज द एक्सपीरियंस, आई हैव गिवन द न्यूट्रिशन प्लान टू many patients. I have given nutrition plan to too many patients and I found 1 minute कि लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, 2-2 घंटे जिम जा रहे हैं, जैसे ही उन्होंने बंद की फिर से पहले ऐसा पेट हो गया। The real thing, go to the gym, control your fat, control your carbohydrate. Carbohydrate और fat बंद नहीं करना चाहिए because they are the energy provider. But until and unless you control the nutrition, until and you control the diet, you can't control the tummy. Now you do the cupping on the abdomen area, increase the muscle tone by doing some exercises and control the diet. It's a perfect plan. इतना करना पड़ेगा, नहीं तो आपने किसी पेशेंट को बोला आ जाओ तुम्हारा हम वजन कम कर देते हैं। आजकल मशीन आ गई है, वो मशीन क्या करती है कि पेट को रैप कर देते हैं, वो गर्म करती हैं और पेट को की चर्बी को गर्म करती है, फैट को गलाती है। टेम्परेरी फायदा होता है लोगों को, जैसे ही बंद करते हैं वापस रिवर्स हो जाता है। सो डू द डाइट कंट्रोल। इन द डाइट कंट्रोल, स्टार्ट द डे विद द फ्रूट्स एंड स्पेशल न्यूट्रिशन कंट्रोल। If possible, don't give food after 7 p.m. because 7 p.m. onwards, 7 to 9, the time of किसका टाइम है? 7 to 9 PC, organ clock cycle, pericardium. pericardium. Who is the opposite of pericardium? Stomach. So stomach is having maximum energy morning 7 to 9 and minimum energy evening 7 to 9. So if you are not filling the stomach in the evening 7 to 9, you are finishing your food before 7 o'clock. It's a wonderful to reduce the tummy. You can try this. I have tried this and I have got very good results. Now you tell. So also there is one type of diet, some Atkins diet, where there is low fat in taking and higher protein. Will that work? Yeah, definitely. Yeah, there is a, yes. Actually, these things works. They avoid carbohydrates totally. Yeah, these things works. We can do it for some day, for few days, right?
कीटो डाइट्स वगैरह का चल रहा है ना, कीटो डाइट्स, हाँ, उसमें प्रोटीन बहुत देते हैं और बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है उससे भी, डेफिनेटली but कैन बी we डन. can't continue it, sir. No, no, you can't do for lifelong. Yeah, only You can 15, do 20 days. because कार्बोहाइड्रेट द सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी. अभी आमिर खान का आप इंटरव्यू देखना, यूट्यूब में पड़ा हुआ है कि आमिर खान ने जब कौन सी दंगल मूवी आई थी ना, दंगल मूवी में अपना पहले तो उसने अपना मोटापा बढ़ाया, फिर अपना मोटापा कम किया दंगल मूवी. तो उसने बताया कि लोगों को एक मिसकंसेप्शन भी है कि कार्बोहाइड्रेट कट कर देना चाहिए. कार्बोहाइड्रेट कट कर दोगे ठीक है, आपका काम प्रोटीन से चल जाएगा, लेकिन आप अपने डेली टू डेली एक्टिविटी वाले काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से. अभी मानो मैं आपके सामने, मुझे थोड़ी कमजोरी लगने लगे थोड़ी सी, तो मैं क्या करूंगा कि आई कैन टेक द ग्लूकोज पाउडर, आई विल फील इमीडिएट एनर्जी, और आई विल टेक सम स्वीट, और आई विल टेक सम मे बी खजूर, आई विल फील इमीडिएट एनर्जी. बट द इमीडिएट एनर्जीज आर अवेलेबल इन द कार्बोहाइड्रेट. तो कह रहे हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट को भी लेना चाहिए, लेकिन रॉन्ग प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट इज वेरी बैड, लाइक पॉलिश्ड राइस, वेरी बैड थिंग. एज पर द रिसेंट रिसर्च, इंडियन पीपल आर गेटिंग ओवरवेट. इंडियंस के ओवरवेट क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर ईटिंग शुगर, refined sugar. Number two, they are taking processed food. Processed food means refined things, like the refined unpolished thing. अगर आपने राइस को अनपॉलिश्ड कर दिया, अगर आपने किसी भी ग्रेन्स को अनपॉलिश्ड कर दिया, तो उसके फाइबर कंटेंट कम हो जाते हैं, फिर वो मोटापा बढ़ाता है. तो थोड़ा इनको ध्यान में रखिए, न्यूट्रिशन कंट्रोल करिए. मैंने आपको चार्ट बनाया है, वैसे एक चार्ट तो मैंने शेयर किया था, एक चार्ट में और शेयर करूंगा. ये जैसे आपके सामने कोई पेशेंट आता है, so you can keep a treatment record like this. Name of the patient, age, sex, address, first consultation date, then consulted by your name, date, कहाँ पर कपिंग की, फिर नेक्स्ट डेट कहाँ पर कपिंग की, नेक्स्ट डेट कहाँ पर कपिंग की. सपोज आपने यहाँ की कपिंग 8 मई, यहाँ पर आपने की मे बी 15 मई, यहाँ पर आपने की मे बी 25 मई. सो राइट एंड एरिया ट्रीटेड विद द कपिंग, आपने कौन से एरिया को ट्रीट किया. फिर और भी लिख सकते हैं कि आपने कौन से मेरिडियन को चूज किया, और भी कोई ट्रीटमेंट किया. यस आई डिड एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट. और पेशेंट का क्या फीडबैक था, ही फेल्ट गुड एंड ही डिडंट फेल एनीथिंग, व्हाटएवर. और इसके साथ यू कैन डू दिस द image, you can mark, okay, I did cupping here. So please share this in the WhatsApp group, na? Yeah, this is only for you only. I will share. I will share in the Telegram group because it will be secure and safe for lifelong. Okay, sir. So I will be doing, we can do cupping here. We are doing cupping here. We are doing cupping here. We are doing cupping here. So we can also write, okay, here, segment treated with the cupping. हमने आखिर cupping से कहाँ इलाज किया, right, left. So it will very helpful. You can add in your consultation. आप अपने consultation उसमें add कर सकते हैं. Sir, share both Sir, the charts, sir. ये क्या? दोनों चार्ट शेयर कीजिए सर वापस. Yes. और सर आई वांट टू आस्क, काफ में जो क्रैम्प्स आते हैं, हम लोग गुजराती में बोले थे कि गोटलो चढ़ी गयो लाइक, हाँ जी. तो उसमें भी डायनामिक कपिंग. देखो काफ में क्रेम्स आते हैं. देखो एक चीज मैं बताऊं, एक व्यक्ति ने, one person is started, उसने एक व्यक्ति ने सडनली क्या किया कि जॉगिंग चालू कर, जॉगिंग, और जिम स्टार्टेड जिम. This is the story of one of my friend only. He thought, okay, now I have to go gym every day. I have to reduce my weight. I have to improve my figure of the body, and he become very much body conscious. Started gym. He gone gym 3 days and did very good exercise, 90 minutes every day. Third day he was sleeping day and night with a too much weakness. Why? Because
whenever we are doing lots of exercises, when you are doing sports activity, when you are running, when you are doing lots of cardio, when you are going gym, so we are consuming more fuel. हम अपने शरीर का ज्यादा फ्यूल खर्च करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास एक कार खड़ी हुई है, आप कार को सिर्फ 10 किलोमीटर चलाते हो तो कम फ्यूल खर्च होगा, लेकिन आप कार को 100 किलोमीटर चलाते हो तो ज्यादा फ्यूल खर्च होगा. In the same way, what you are doing, you are going gym, you are doing workout, you are doing exercise. So now you are consuming more energy. So now, what is the fuel? Fuel is calcium. Mainly fuel is calcium and also protein. So immediately there will be calcium deficiency. If you are, then there will be cramps in the calf muscle. Right? Some kids are playing a lot and they suffer with a calcium deficiency because they need lots of calcium, but in the diet there is not enough calcium. Then they start getting hair fall because calcium is deficient, protein is deficient. So what is the solution? Start giving some natural supplements. Like, then what my friend did, उसने क्या किए कि रोज 1 गिलास दूध चालू किया, शाम को 2 खजूर, 2-3 अखरोट, 2-3 बादाम, थोड़ा सा किशमिश, थोड़ा सा खजूर, ऐसे 4-5 उसने ड्राई फ्रूट लिए. पहले दिन के बाद ही वीकनेस खत्म हो गई, इमीडिएटली वीकनेस को. Not necessary that you take calcium tablets. No, not required. Even calcium tablet is sometimes harmful. But in emergency you can take. Suppose you are suffering with lots of cramps in the body और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ड्राई फ्रूट, या आपका पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो भैया बोल दो कि आप ले लो. फिर चूना जो पान में लगा के खाते हैं वो भी एक अच्छा ऑप्शन है. राइट? इसके अलावा हमें कैल्शियम और प्रोटीन का इंटेक करना होगा. Protein in the natural form. Sir, sesame seeds are highest in protein and calcium. Which one? Til, sesame seeds. या Black and white. तिल के लड्डू बना के रख लीजिए, तिल और गुड़ के लड्डू, या फिर तिल का कुछ भी बना के खाइए. It's a very good. Even garden cress seeds, sir. Garden cress seeds are also very good for calcium and iron. Which one? Which seeds? Garden cress seeds. ये कौन से सीड होते हैं? Garden cress, CRESS. जो हम प्रेगनेंसी के टाइम पे देते हैं ना. हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? सर ये मैं असेडियो बोले. सर ये बोलते हैं. वाटर रिच ग्रेन्स होते हैं. गार्डन स्ट्रेस, CRESS. CRESS. अच्छा. Yes. अच्छा जी. Okay. Halim. Got it. Halim seeds. Okay. Fine. Sprout सर ये हलीम सीड्स एंड गोंद होते हैं ना जो हम लड्डू में अच्छा, डालते हैं. इसको लोग स्प्राउट करके भी खाते हैं. Right. हाँ सर, स्प्राउट करके खाते हैं सर. सर ये स्प्राउट कैसे होते हैं? अलसी दिख रही है नहीं, मैं वही बता रही हूँ 1:1. सर. हलीम सीड और गोंद होती है ना, गोंद जो लड्डू में डालते हैं. हाँ. अगर हम उसको रात भर पानी में भिगा के रखें और दूसरे दिन वो पानी पी ले तो भी हमारा कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है और क्रैम्प्स वगैरह जो भी आते हैं ना वो कम हो जाते हैं. या इसीलिए फीमेल्स को डिलीवरी के बाद दिया जाता है ना वो सब. हाँ, क्योंकि उनके शरीर में सीवियर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है. सर मैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस शेयर करूं. हाँ बताइए. मैंने आपके क्लासेस में बहुत टाइम से अटेंड कर रही हूँ, 3-4 इयर्स हो गए आपकी मैं रेगुलरली. तो अभी मैंने क्या किया, पिछले 2-2.5 महीने से मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट किया. सो आफ्टर लंच आई वाज नॉट हैविंग एनीथिंग. लंच भी हम लोग 3:30, 4 o'clock, 4:30 मैक्स. तो उसके बाद नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज डूइंग हैविंग माय टी एंड ऑल, ठीक है. तो लेकिन उसके बाद टी पी लिया, फिर फ्रूट्स वगैरह खा लिए व्हाटएवर, और लंच एक ही बार, मतलब फुल डे में कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंटेक है वो लगभग एक ही बार हुआ, वो भी 2 रोटी 2.5 रोटी. एक वन टाइम में हम कितना खा सकते हैं ना सर. यस राइट. So for 2.5 months it was okay, but slowly, gradually my energy level was weak, started going down in the evening. स्पेशली अभी क्या हुआ जब कि इवनिंग में मेरा एनर्जी लेवल इतना डाउन जाने लगा कि बच्चों को खाना देने में भी ना, मतलब
या ताकि कोई उठ के दे ही दे। हाँ हाँ आई वाज फीलिंग रियली लो हम्म कि कुछ ना कुछ डाउन जा रहा है। हम्म Then I stopped. I started taking my dinner also, Yeah. light dinner now. Hmm. So now I am feeling getting back to the normal. Yes, yes. So it उससे मेरा means वेट पहले मेरा वेट तो कम हुआ, टमी स्पेशली कम हुई, इंच लॉस हुआ, लेकिन अल्टीमेटली मेरा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम जाने लगा। yes, तो yes, अगर अभी मैं लो कार्बो मतलब लो लाइट डिनर लेती हूँ, देन आई एम फीलिंग फार बेटर देन दैट। So body, as per the body, we should, because every body is having different chemistry. So as per the experience of Monica ji, what we have to do, we can select, okay, I will do intermittent fasting on the Wednesday or in the Thursday or in the Monday. You can choose 1 or 2 days every week. सर एज ऑल्सो मैटर्स ना, नहीं सर, एज शॉर्ट टर्म के एज लिए के it हिसाब was से भी good. हमारा प्रॉब्लम होता है। हाँ, अभी हाँ। नाउ माय किड्स वर पुट ऑन टोटल प्रोटीन डाइट, नो कार्बोहाइड्रेट्स, उनको भी वीकनेस होने लगा, जबकि वो लोग स्पोर्ट्स में है, इतना ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने की वजह से दे वर फीलिंग सो वीक, दे वर नॉट एबल टू प्ले द मैचेस। ये राइट। और एक अभी मुझे एक स्पोर्टी मिला, एक रनर जो 10-10 किलोमीटर की रनिंग में रेस करता है। तो उसने कहा था कि जब मैं रनिंग करता हूँ ना, मैं चावल यहाँ तक खाता हूँ, यहाँ तक, है ना, उसके फिर बाद में मैं रनिंग करता हूँ। मैंने ये नहीं पूछा कितने घंटे बाद रनिंग करता है उसके। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट गिव्स यू इमीडिएट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी। क्योंकि अगर आपको एक आध बार दौड़ना है, एक आध बार एक्सरसाइज करनी है, कुछ नहीं होगा। लाइक प्रीति जी, आपके बच्चे तो बैडमिंटन में स्टेट लेवल तक खेल के आए, दे आर डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस एवरी डे, मे बी मेनी आवर्स, मे बी more than 4 hours every day sometime 11 hours, 11 8 hours। hours total। तो आप सिर्फ प्रोटीन से नहीं चला सकते, बिकॉज बॉडी नीड एवरीथिंग, राइट? बॉडी को सब चाहिए। कार्बोहाइड्रेट इज द ग्रेट पार्ट ऑफ द डाइट हमारे खाने का। लेकिन हमने गलती क्या किया ना, हम उसे जो पॉलिश्ड करके खाते हैं ना, जिसके छिलके निकाल के मतलब चावल को हम पॉलिश करके खाते हैं, वो गलत है। जो हम आटा खाते हैं ना बिना चोकर वाला, वो गलत है। हम अपनी डाइट को थोड़ा मॉडिफाई कर लेना, देन इट्स रियली वेरी गुड, राइट? सर सब चीज खाना सर, चाहिए, पर क्वांटिटी ध्यान क्रैम्स रखें ना, तो सर कुछ हाँ। प्रॉब्लम नहीं होता। यस सर क्रैम्प्स का क्वांटिटी आपने इम्पोर्टेंट बोला, है सर। जी, क्या सर है? अभी मैं क्रैम्प्स का आपने बोला कैल्शियम कम है, लेकिन कपिंग का एक्सप्लेनेशन रह गया। अरे तो बस, हाँ, आपको उस एरिया में कपिंग करना है डेफिनेटली, लेकिन अंदर से जब तक डेफिशिएंसी ठीक नहीं होगी, कपिंग भी काम नहीं करेगी। दैट्स व्हाई आई गिवन दिस एग्जांपल। वन पेशेंट केम टू मी, severe lower back, severe leg pain. Then I saw the report, vitamin B12 and the vitamin D severe deficiency. आपको क्या लगता है कि कपिंग से बिना हम अगर उसे विटामिन B12 और डी ना दे तो ठीक हो जाएगा? नहीं, डेफिशिएंसी। I did cupping. Patient told, oh, no effect. Still I am having weakness. I did some other treatment, acupuncture treatment, no effect. तो मैंने बोला भैया, अब हम धीरे धीरे करके आपके विटामिन बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप क्या करो, विटामिन B12 का सप्लीमेंट चालू करो, है ना? सर मुझे शेयर करना है कुछ। हाँ, तो जैसे उसने विटामिन B12 लिया ना, वो सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। न्यूरोबियन का इंजेक्शन लिया ना, अगले दिन ठीक हो गया पेशेंट। हाँ होता है। दैट इज टेम्पररी। उसमें हम नेवल के अब आसपास जो विटामिन B12 है वो। अभी पेशेंट को अब हम क्या करेंगे कि अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं कुछ नहीं लेना है, इंजेक्शन आ जाओ हम ठीक कर देंगे, नहीं। पहले पेशेंट को नॉर्मल लेवल पर लाओ, फिर आप ट्रीटमेंट दो, और ऐसा कोशिश करो कि अगली बार डेफिशिएंट ना हो उसकी बॉडी। CV6 CVDOL stomach 36 a very good point. Even multivitamin we have to tonify spleen, we have to work on the spleen. सर एक्चुअली तो सर क्रैम्प्स ज्यादा होते हैं तो सर मिनरल्स एंड विटामिन्स आर लेस। Yes, right. एंड वाटर इनटेक इज आल्सो लेस। सर पानी पीने से भी कभी कभी क्रैम्प्स तुरंत निकल जाते हैं, और वेजिटेबल जूस लेते हैं ना सर ट्वाइस अ डे, तो उससे भी क्रैम्प्स कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। Because calcium is also one mineral, और मिनरल की कमी से क्रैम्प्स आते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। और डिहाइड्रेशन से भी क्रैम्प्स आते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। दैट्स व्हाई इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए अगर आपका ज्यादा पसीना निकलता है, और अगर आप एक्सरसाइज करते हो। थायराइड के पॉइंट्स लगा सकते हैं, कैल्शियम कम है तो। मेंस्ट्रुएशन, during menstruation cycle also she was getting cramps very often. Yeah, actually, yeah. So
there might be actually there might be many other like during the menstruation also many female might get the cramps because menstrual bleeding is not happening freely. Okay, जैसे हम एक्यूपंक्चर में बोलते हैं लिवर ची स्टैग्नेशन, तो दो तरह की ब्लीडिंग होती है. एक ब्लीडिंग ऐसी होती है जो फ्रीली हो जाती है विदाउट एनी हिंड्रेंस, बट वन अनदर टाइप ऑफ द bleeding is not happening easily, it's happening with the because of the liver chi stagnation. तो लिवर ची जो ऊर्जा अटकी हुई है, ऊर्जा ठीक से फ्लो नहीं हो पा रही, तो हम फिर लिवर ची स्टैग्नेशन के पॉइंट लगाते हैं. वो लिवर ची स्टैग्नेशन से कनेक्टेड है वो बात, राइट? सर मैंने वो टेनिस एल्बो का केस आपसे डिस्कस किया था. हाँ. कल मैंने उनको वापस कपिंग किया पूरा आर्म में, और जो आपने लिवर, स्टमक और सेंटर पॉइंट बताया था वहां पे भी किया, तो उनका जो लिवर एरिया था वो डार्क कलर हो गया. ओके, और उसके बाद शाम को, और मैंने मोक्सा भी किया था उनको. तो इनका मतलब है कि कहीं तो लिवर एरिया डार्क हो गया, तो हमने हाँ, समझा ही था कि एल्बो इज कनेक्टेड विद लिवर. विद लिवर, इसके लिए मैंने कल उनको लिवर एरिया में किया. आज मुझे मैसेज आया है सुबह कि his pain is almost gone, he is feeling very comfortable. या और फिर एक और पेशेंट है जिसकी ना ये फिंगर्स है ना, हाँ. रिंग, ये अपना मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर में पेन आ रहा है, लेकिन उसको कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं है, बट वो कुछ भी उठाते एक पर्टिकुलर एंगल में उनको पेन आ रहा है, तो उसके लिए भी हमको लिवर स्टिमुलेट करना पड़ता है क्या? मुझे वो पूछना. इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, राइट? इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ये medial nerve, you can say medial nerve is paining. Yeah, so actually carpal tunnel syndrome means when there is a nerve compression in the wrist area, right? That is the carpal tunnel syndrome. But the There are compression no is symptoms. somewhere else also, कि गर्दन में भी कंप्रेशन होगा या फिर शोल्डर एरिया के पास कंप्रेशन होगा, कहीं रूट में भी कंप्रेशन होगा. Sir, Only the cervical nerve compression might create problem here. I did cervical full, and that cervical area became dark red color. So he might be having the problem with the, because finger are connected with the cervical area. So treat cervical area only. Not only cervical area, I will tell you, or entire cervical area with the T1, T2, T3, T4. Okay, यहाँ से लेके T4 तक का एरिया हमारे हाथों से कनेक्टेड. ठीक है सर, I'll do that. So for और सर restless अगर leg एक ही syndrome, फिंगर में प्रॉब्लम हो तो? कोई एक में फिंगर में हो या ज्यादा में हो, गर्दन से कनेक्शन. देखिए, आर्म हमारे गर्दन के सर्वेंट है और पैर हमारे लोअर बैक के सर्वेंट है. हम आर्म को उठाते हैं तो हमारे गर्दन की नर्व तुरंत आर्म को जाकर मैसेज देती हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? sir, restless leg में रेस्टलेस लेग में तो आपको पहले कोच को फाइंड आउट करना होगा, देन यू हैव टू डू द ट्रीटमेंट. सी कि कपिंग से हम लोकल एरिया को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ की एनर्जीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अनटिल एंड अनलेस वी फाइंड द रूट कॉज हम उसको ठीक नहीं कर सकते. कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में लोगों को काफी दर्द होता है ना, और बस वो अपना पैर हिलाते रहते हैं रात भर. द पर्सन लिविंग lying in the bed and keep moving leg here and there, it gives very good effect. unknowingly. I have done the treatment for patient. I did cupping only in the back and very good effect in the restless leg syndrome. Sometimes restless leg syndrome because of the iron deficiency. कभी-कभी आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है, लेकिन कई पेशेंट जो अस्थमा की दवाइयां लेते हैं, पंप लेते हैं, तो उसके कारण भी उनको, या फिर डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं, उन्हें भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाता है. तो आपको पता करना पड़ेगा कि खून कम है, आयरन कम है, या कोई डिसीज है क्या. कोई डिसीज के कारण भी हो सकता है. दे आर सफरिंग विद सम डिसीज, लाइक वन ऑफ माय पेशेंट वाज हैविंग अस्थमा और ही इज हैविंग रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. Inhalers and all. अदर पेशेंट हैविंग डायबिटीज हैविंग रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में क्या, अगर रात को सोएगा ना, ऐसे पटकता रहेगा पैर, ऐसे जैसे हाथ से हमने देखा. सोते अपनी कमर पर से टैप बैक करते हैं. साउंड बहुत आ रहा है सर. सर ये सिर्फ रिकॉर्डिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है. ओके जी, रेज हैंड करिए. तो इसी कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. तो करिए, कपिंग इज वेरी वेरी इफेक्टिव. आई विल टेल यू, वेरी मच इफेक्टिव. बट
not permanent. Cupping is not the permanent treatment. You have to, अब मान लो हिस्टामिन, कोई व्यक्ति एंटी हिस्टामिनिक लेता है, हिस्टामिन हम जानते हैं ना, हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन का मतलब है, एंटी हिस्टामिनिक का मतलब है वो अस्थमा का पंप, उसे रेशलेग सिंड्रोम होगा, क्योंकि अस्थमा के पंप में स्टेरॉइड्स होते हैं, उससे हमारे शरीर में कैल्शियम और कई सारे मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है और इट क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस, सुनील कुमार आर्य जी. सर 4 इयर्स का बच्चा है और उसको सर कॉन्जेनिटल हियरिंग लॉस है 70% तक, तो उसको कपिंग उसका कैसे अप्रोच करना चाहिए सर उस पेशेंट को? कल से वो हमारे टच में है सर वो बच्चा, और वो मशीन लगा के सुनता है. ओके, तो जब भी हम ईयर की बात करते हैं, वी नो द ईयर आर कनेक्टेड विद द किडनी, राइट? So we have to focus on kidney as well as the ear. Two type of hearing loss, one congenital, one acquired. एक तो जन्म से है और एक बाद में हुआ है. जो congenital होता है उसको ठीक करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन हम कुछ लेवल तक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट? लेकिन जो जन्म के बाद होता है, जैसे किसी को 15 वर्ष की उम्र में हियरिंग लॉस हो गया, उसको ठीक करना आसान है. किसी को 20-25 साल में, 10 साल में हियरिंग लॉस हो गया, उसको ठीक करना आसान है. बुढ़ापे के कारण जो हियरिंग लॉस होता है उसको ठीक करना भी कठिन है. तो दो हियरिंग लॉस को ठीक करना कठिन है, एक जन्म से और एक बुढ़ापे के कारण. लेकिन फिर भी हम उस पर वर्क कर सकते हैं. क्या वर्क करेंगे? 1 cup बैक, 1 cup फ्रंट, 2 cup हियर, and we are doing dynamic massage on the upper back and the lower back area. Even we can do very gentle massage on the entire back area. बच्चा है तो क्या कर सकते हैं आप, वो जो रबड़ वाले कप्स आते हैं वो हल्के हल्के कप्स का प्रयोग कर सकते हैं, या ये वाले कप का प्रयोग भी करें तो फिर आप थोड़ा सा लाइटली करें, हल्का सा ऑयल लगाकर बहुत ही जेंटल उसे मसाज करिए, सो दैट किडनी पर मसाज करेंगे तो कान मजबूत होंगे, स्प्लीन पर मसाज करेंगे तो कफ का निर्माण रुकेगा, और लंग्स का और ऊपर मसाज करेंगे तो इट विल फ्लश द एनर्जी इन द अपर पार्ट. तो वो करिए, और 2 cup हियर, 2 cup हियर, इट विल वर्क अकॉर्डिंगली, राइट? और फिर देखिए साथ में कोई TCM का प्रोटोकॉल बना के भी लगाइए, किडनी ची आदि का ट्रीटमेंट करिए, किडनी ची डेफिशिएंसी पर वर्क करिए, उसको फायदा मिलेगा. कितना मिलेगा? मे बी कुछ परसेंटेज तक मिलेगा, 20%, 30%, कुछ परसेंट उसको जरूर है. लेकिन हमें, आप ऐसे पेशेंट की गारंटी मत लीजिएगा, है ना, कि हम 100% ठीक कर देंगे. कई लोग मुझे फोन करते हैं, कई स्टूडेंट, सर हमने तो गारंटी ले ली, अब क्या करें, ठीक तो हो नहीं रहा पेशेंट. अब जब भी पेशेंट आता है तो हमारी घबराहट बढ़ जाती है. ऐसा मत करिएगा. तो पेशेंट को बोलिए वी विल ट्राई अवर बेस्ट, उसे थोड़ा फायदा जरूर मिलेगा, है ना? कितना मिलेगा वो आपको बाद में ही पता चलेगा, है. ओके, और डन. और कोई प्रश्न है आपका? सुनील जी, अनम्यूट करिए. नहीं सर. ठीक है. और सर जो लोग, सर एक प्रश्न और था सर, आप तो प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए बताए, लेकिन जैसे जो हम लोग नया क्लिनिक बना रहे हैं, तो क्लिनिक में क्या रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए? एक क्लास सर उसका भी लीजिए कि कैसे क्लिनिक को चलाया जाए और कैसे क्लिनिक पे वर्क किया जाए सर. क्योंकि हम लोग बहुत छोटे जगह से बिलोंग करते हैं, तो वो साधन का भी थोड़ा बहुत शहर से लाना पड़ता है, और जो बड़े मेट्रो सिटीज में है उनके लिए साधन ज्यादा है. अब हमारे यहाँ थोड़ा कम है, थोड़ा समझना पड़ता है सर कि किस तरह से क्लिनिक, जैसे हम बना रहे हैं क्लिनिक, तो क्या रखना चाहिए उसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे वैक्यूम कपिंग सर आपने बताया वो रखना चाहिए. इस तरह से और क्या क्या रखना चाहिए क्लिनिक तो के अंदर, क्या आपको कम से कम 2 प्रोफेशनल बेड लेना चाहिए, कम से कम 2. एक बेड 10-11 हजार का, है ना? 2 प्रोफेशनल बेड लीजिए, और एक आपने वैक्यूम कपिंग इलेक्ट्रिक वाला, जो भी 10-11 हजार की रेंज में आएगा, आई थिंक. जी. इसके अलावा नॉर्मल कप भी आपको 400 रुपए में आ जाता है. नॉर्मल कप आपका 400-500 रुपए में आ जाता है. कम से कम हमारे पास 2 मशीन होना चाहिए इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर वाली, कम से कम, अगर आप क्लिनिक खोल रहे हैं, राइट? कम से कम 2 इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर की मशीन हो आपके पास. इसके अलावा एक वेट करने की मशीन होना चाहिए, तो पेशेंट का वेट करने की,
हम दीवार में एक जगह हम हाइट करने का कुछ लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हाइट में बढ़ाने के पेशेंट भी आ सकते हैं। तो आजकल वो हाइट का आता है, ऊपर नीचे करके हम हाइट मेजर कर सकते हैं उसकी। और इसके अलावा हम हमारे इसके अलावा अब आपका जो क्लिनिक है, क्लिनिक को आप अगर कम खर्चे में आपको स्टार्ट करना है, आप क्या कर सकते हैं कि या तो पर्दे डाल सकते हैं, लेकिन आपका कंसल्टिंग रूम थोड़ा सा एक सेपरेट होना चाहिए, भले ही आप उसे टेम्परेरी बनाएं। और आप पर्दे डाल सकते हैं, छोटे छोटे हाफ चैम्बर बना सकते हैं। हाफ का मतलब है कि आधे बनाए, आगे से खुले, आगे पर्दा डाल दिया, ऐसा कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आपके जैसे ही कुछ दिन होंगे, आप जब लोगों को वैक्यूम इलेक्ट्रिक कपिंग करेंगे, इनिशियली आपने एक ले लिया, कुछ दिन में आप एक और ले लेंगे, आपको लगेगा नहीं अभी मेरे पास पैसे भी आ रहे हैं और ना आई कैन टेक इट। हाँ, बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, एक स्टेथो होना चाहिए, आप यूज करते हो मतलब बीपी इंस्ट्रूमेंट, एक स्टेथो होना चाहिए आपके पास। और बाकी अपने एक्यूपंक्चर की जो निडल्स आदि होती है वो होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपके पास जरूरी है। बाकी तो फिर समय के साथ साथ क्या होगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इन चीजों की जरूरत है। हाँ, आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका एक लेटर पैड होना चाहिए, है ना। ये बेसिक चीज है। फिर आप क्लिनिक बनाने के बाद आपके शहर में जो बायोमेडिकल बेस्ट वाले हैं वहां पर रजिस्ट्रेशन करिए। उनका 1 साल का एक चार्ज होता है थोड़ा सा, ताकि आपकी जो ब्लड वाली कॉटन है, निडल्स हैं, उसको वो ले जा सकें। जब तक नहीं किया रजिस्ट्रेशन, तब तक आप किसी डॉक्टर फ्रेंड से, किसी एलोपैथिक डॉक्टर से कांटेक्ट करिए और निडल्स को किसी बॉक्स में रख के भर के आप उन्हें दीजिए, ताकि वो डिस्कार्ड करें। निडल को हम ऐसे डस्टबिन में नहीं फेंक सकते या सामान्य जगह नहीं रख सकते, वो गलत है, उस पर जुर्माना है। पकड़ में नहीं आते हुए अलग बात है, लेकिन उस पर जुर्माना है, राइट। फाइन। हालांकि छोटी जगह में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये बात की बात है, इनिशियली आप अपने क्लिनिक को स्टेब्लिश करिए। जैसे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि मुझे भी बायोमेडिकल बेस्ट में भी रजिस्ट्रेशन कराना है। बायोमेडिकल बेस्ट रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है अगर आपको अपना क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन कराना हो, राइट। यू कैन डू इन दैट। क्लियर। हम इसकी क्लास कभी और भी लेंगे डिटेल में, तो हम आपको एक क्लिनिक का पूरा बताएंगे। सो लाइक सेम थिंग आई एम डूइंग बिकॉज आई हैव और कभी ऐसा होगा तो आप बताइएगा, हम आपके आ जाएंगे, आपको समझाएं उधर ही आपके क्लिनिक। जी सर, ये तो सौभाग्य हो जाएगा सर हम लोग का। आपका आना कितना बड़ा सौभाग्य हो सकता है सर। आपको बुलाना सौभाग्य है। नहीं सर, हम आना आपके लिए, आप हमारे लिए सौभाग्य है सर। और सर हम लोग का ऑफलाइन सर होगा ना सर, वो प्रैक्टिकल थोड़ा। हाँ, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी मैं ग्वालियर में वर्कशॉप कर रहा हूँ। आप मैं सोच रहा हूँ कि, लेकिन देखो सबको कहीं ना तो कहीं एक आना पड़ेगा। मास्टर वेलनेस वाले जो आ सकते हैं उनको मैं एक दिन के लिए बुला लूंगा वहां पर, सिर्फ प्रैक्टिकल निडलिंग के लिए, क्योंकि वो 10 दिन का क्लास है हमारा ग्वालियर में, 10 दिन का प्रैक्टिकल सेशन होगा। तो जो मास्टर वेलनेस वाले स्टूडेंट्स अगर आना चाहें तो एक दिन हम डिसाइड करके उनको बोल सकते हैं कि एक दिन आ जाओ, ओनली फॉर द प्रैक्टिकल निडलिंग टेक्निक्स एंड वर्कशॉप। विल सी, विल वर्क ऑन दैट। सर वैसे तो बड़ोदरा में भी हम लोग आ सकते हैं सर। अभी बड़ोदरा में ही रख लीजिए सर एक दिन। हाँ, मतलब बड़ोदरा में तो रख सकते हैं। अभी तो ग्वालियर में रख रहे हैं, तो ग्वालियर में हम एक कैंप भी रख रहे हैं पेशेंट्स का। तो क्या हमारा टारगेट है कि 200-250 पेशेंट को ट्रीट करें और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो। तो क्या होगा कि काफी जो भी लोग आएंगे उनको सीखने को मिलेगा, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए पेशेंट होना चाहिए। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। बड़ौदा में भी रखेंगे इन फ्यूचर, बिकॉज राइट नाउ आई एम नाइदर इन द बड़ोदरा नॉर इन ग्वालियर, राइट नाउ आई एम इन द भुवनेश्वर, राइट। लेकिन हम वी विल प्लान। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ सर मैं ग्रैंड सर 4 इयर्स, तो उसको 10-15 दिन से बुखार चढ़ रहा है, तो ब्लड टेस्ट किया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया। तो कल उनका लंग्स का एक्सरा लिया और स्टमक की सोनोग्राफी की, तो माइल्ड स्पाइनोमेगाली, मतलब उसकी स्प्लीन थोड़ी मतलब सूजी, और थोड़ा पैंक्रियाटिस मतलब आया, मतलब लिखा उन्होंने माइल्ड है। तो उसके लिए सर थोड़ा डाइट में, और मैंने स्प्लीन के पॉइंट उसको रात को लगाए थे, स्प्लीन 2, 4 और 3 और CV12, मतलब उसके स्टमक के लिए। और कौन कौन से पॉइंट सर, डाइट भी बोलिए सर, वो पॉइंट्स नहीं लगवाता मेरे से, ना कलर लगवाता है।
देखो क्या होता है कि जब भी फीवर आता है तो स्प्लीन बढ़ जाती है, क्योंकि स्प्लीन को हम बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, पता है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी, Spleen is called the Kabristan of RBC. So whenever person is having some fever, some problem or some disharmony, so हाँ जी। क्या होता है कि स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। तो स्प्लीनोमेगली को सर अभी स्प्लीनोमेगली को ठीक करने के लिए हमारा एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है जिसे हम कहते हैं LI13, लार्ज इंटेस्टाइन 30। सर आप 1 मिनट। आप लिख लीजिए, आप सर्च कर लीजिएगा। हाँ, स्क्रीन नहीं में सर मेरे को पता पॉइंट किधर, LI13। LI13 एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। फिर मैं आपको एक पॉइंट की लोकेशन दिखाऊंगा। अब ये बताइए मुझे आप 3 हाँ जी, 4 ओके 3 4 5 6 7 सुजोग में है। हाँ जी, सुजोग तो जानते हैं, हर कोई जानता है। सुजोग में हाँ हम जी। स्पाइन किधर है बताइए? स्पाइन सर यहाँ पे, बैक पे। एक मिनट, कहाँ है आप? एक मिनट रुकिए, आपको मैं स्पॉटलाइट सर बैक बैक पे टी बताइए। से टी का पूरा और लंबर और वो दूसरा आता है सर, T20 21 स्टमक के पॉइंट। एक मिनट रुकिए, यूबी। हाँ जी अब बताइए कहाँ पर स्पाइन है हमारी सुजोग में? सर, सुजोक में स्पाइन सर, ये अंगूठे से थोड़ा इधर को आएंगे सर। नहीं, यहाँ पर है ना स्पाइन, यहाँ पर। हाँ स्पाइन पूरी पता है सर। कहाँ पर है? हाँ, हाँ उंगली जी रख के बताइए, बताइए कहाँ पर है, दिखाइए आप। सर, दिस इज स्पाइन ना, पीछे की बाजू। तो परफेक्ट ये जो अंगूठा आता है ना सर, हाँ उसके यहाँ पे। हाँ, अंगूठे को भूल जाइए, पूरी स्पाइन तो ये है ना। हाँ पूरी पता है spine सर। हाँ ठीक है, ठीक है। अब पैर हाँ में जी कहाँ है? पैर में सर, पैर में सर मिडल उंगली उंगली के बीच में, और अंगूठे और उसके बीच में सर थोड़ी सी। दिखाइए, पैर में दिखाइए। ओहो, 1 मिनट सर, यहाँ पे, चलिए नहीं दिख यहाँ रहा, तक। कोई बात नहीं है, और कोई दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, जरा पेन घुमाइए, पेन घुमाइए, पेन घुमाइए पैर में। हाँ सर, तो ये चलिए आप समझ गए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहीं पर हमारे मास्टर टूम के 2 पॉइंट होते हैं, उनका हाँ नाम जी, है 66.06 एंड 07। 66.06 06 एंड 07 एंड 07। हाँ जी, चलिए मैं दिखाता हूँ। मेरा पैर देखिए, दिख रहा है पैर आपको? हाँ जी दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं। 66 पॉइंट ठीक है। देख रहे हैं, एक यहाँ, हाँ जी 2 पॉइंट। ओके, 66.06 एंड 66.07। मैं आपको एक ठीक है इमेज सर। में दिखा देता हूँ। सर मेरे पास है मास्टर टूम के पॉइंट्स, आपके पास मैंने है, किया लेकिन आपसे, आपका मैंने प्रश्न आपसे है, किया हुआ। आपका प्रश्न है, लेकिन बाकी लोगों को भी समझ में आना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी ठीक है। हाँ देखो, so let's see this. हाँ जी, हाँ जी, So ये हमारी सुजोग में हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा स्पाइन है, राइट? हाँ जी। हाँ यहीं पर 2 पॉइंट हैं। ये दोनों पॉइंट ओके, स्प्लीनोमेगली के बहुत अच्छे पॉइंट हैं। ओके 66.06 66.07 द ठीक पॉइंट है ऑफ स्प्लीनोमेगली। सर। जब जब हम सर करते हैं तो जहाँ पे वो खत्म होती है, मतलब हाँ हाँ, जहां डेप्थ पर खत्म होती है। बिल्कुल। तो ये जो 2 पॉइंट है, ओके, कहते हैं कि हमारे शरीर में किसी भी ग्लैंड की इनलार्जमेंट को ठीक करते हैं, लेकिन सबसे हाँ जी बेहतर पॉइंट है ये हमारे स्प्लीनोमेगली के। तो सर, हम इनको प्रेस करने के पॉइंट्स लगाने। एक्यूपंक्चर में पॉइंट लगाते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चा, सर वो कुछ नहीं, वो एक्यूपंक्चर नहीं करवाएगा सर, तो एक्यूप्रेशर करिए। चलेगा ना? हाँ, तो बैठे हाँ, बैठे वो तो कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर करिए, ठीक है जी। तो हाँ जी, हाँ जी एक्यूप्रेशर भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके सर। बाद वो मैग्नेट्स कौन से लगा सकते हैं? कुछ लगाना है, मेथी दाना या कुछ और? मैग्नेट मटर के बड़े थोड़े दाने लगा दीजिए आप, थोड़े बड़े। हाँ जी ठीक है, लगा देंगे रात को। हाँ, मटर के दाने लगा देंगे। रात को लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में भी लगा, हाँ बच्चा रात को सो जाएगा, दिन में तो वो खींच देगा, है ना? तो हाँ रात जी। को लगा दीजिएगा। तो इस नहीं तरह सर, वो ना जरा सा उसको ब्लैक डॉट भी लगाओ ना, कुछ तो अब भी निकालो, गंदा कर दिया बोलेगा। ओके,
ठीक तो है आपको सर। क्या करना है, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन ये बच्चे के लिए काफी प्रभावकारी हैं, आप लगा सकते हैं। और जब पैंक्रियाटिस के लिए आइटिस मींस इसके अलावा आपको लोअर 3 एम्परर पर वर्क करना है। लोअर 3 एम्परर, लोअर 3 एम्परर। ओके। लोअर 3 हाँ एम्परर जी, पता है आपको? लोअर 3 एम्परर, हाँ जी, राइट? मैं देख लूंगी। आप देख लेंगे। तो लोअर 3 एम्परर पर हम जब वर्क करते हैं तो ये हमारे इस पेंक्रियाज को बैलेंस करता है। इट्स अ वेरी गुड पार्ट, लोअर 3। इतना करिए बस। अब रिगार्डिंग द डाइट, डाइट में क्या होता है कि पेंक्रियाज का काम है, अगर आप फैट देते हैं तो पेंक्रियाज पर लोड बढ़ जाता है। तो पहली बात तो तो क्या करते तो? फैट का इंटेक अभी फिलहाल के लिए स्टॉप करिए। फैट गुस्सा नहीं करना, मतलब डराना नहीं है। फैट 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 दैट समझ, मींस खाने में जो फैट होता है, डराना सर, खाने में जो फैट होता है ना, कि ये भी खा वो भी खा वैसे। मतलब खाने में फैट नहीं देना उसको। अच्छा अच्छा, फैट फैट, ओके सर। आपको क्या सुनाई दिया? थ्रेट। हाँ, खाने में उसे फैट नहीं देना। right? सर वो मांगता ही वो है क्या मांगता है? सर, जैगरी जैगरी बॉल्स, हमारे में चूरी बोलते हैं। रोटी गुड़ और घी। अच्छा अच्छा, अभी वो ही खा के गया सर नाश्ते में। थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होगा कि पेंक्रियाज के ऊपर जोर पड़ेगा नहीं तो, है ना, थोड़ा हाँ सा। जी, हाँ जी। तो थोड़ा सा ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा उसका, नहीं तो बच्चा तो कुछ भी मांगेगा, आप उसे सब नहीं सर दे वो सकते। वैसा ही, वो ऐसी चीजें ही मांगता है। बटर चाहिए उसको। ओके, सर कर्ड विल डू ना? पॉइंट, ये पॉइंट्स आप लगाइए। और कर्ड कर्ड सर, कर्ड, दही। दही दे सकते हैं, लेकिन पानी डालकर, पानी मिलाकर पतला करके आप दही का प्रयोग करा सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। यानी आपको दही में थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, एक पतला, जिसे हम छाछ बोलते हैं ना, वैसा करके आप दे सकते हैं। ओके, ठीक है, इतना करिए बस। पॉइंट तो बहुत ठीक है सारे, सर। पॉइंट तो और भी हैं, बच्चे के लिए इतना काफी सर ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर। है। यस श्वेता जी। Hello, sir. हेलो श्वेता। Sir, I had a doubt that when we do myofascial cupping, so उसका जो एक्शन होता है, वो टोनिफिकेशन का एक्शन होता है या सिडेशन का, डिपेंडिंग अपॉन कितना हमने कितना सक्शन किया है। सो सपोजिंगली टाइट सक्शन है तो मतलब उस हिसाब से कुछ एक्शन होता है क्या उसका? एक्चुअली कपिंग से ना तो टॉनिफिकेशन होता है ना सेडेशन होता है। कपिंग क्या करती है? कपिंग सेपरेशन है एक तरह का स्किन का मसल और फेशिया के साथ। तो जब हम उसे स्किन को पुल करते हैं, स्किन को खींचते हैं, तो वो एनर्जीज का वहाँ सबसे पहले लोकल एरिया में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होता है। वहां पर जैसे हमने बताया कि वहाँ की जो छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ता है, उस ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन, मास्ट सेल्स, इम्यून सेल्स, हिस्टामिन आदि आते हैं, और इस तरह से वर्क होता है, राइट? तो आप बोलेंगे कपिंग करके, तो वहां पर हम एक एक्यूट कंडीशन पैदा कर देते हैं। एक्यूट कंडीशन मतलब है कि कहीं हम गए, चोट, हम गिर गए, चोट लग गई, हम बोलेंगे ना एक्यूट इंजरी। तो कपिंग करके हमने एक एक्यूट इंजरी पैदा कर दी एक तरह की, वो लेकिन हमारी इंटेंशनल इंजरी है। लेकिन ये टॉनिफिकेशन सेडेशन की बात ही नहीं आती, ये एक तरह का इवन मेथड है। इवन इट्स एडेप्टोजेनिक, कि शरीर को जो जरूरत है वो होगा, तो दोनों होगा कुछ। लेकिन जब हम किसी लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को करते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि किसी किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है। हाइपोटेंशन क्यों हो सकता है? क्योंकि ब्लड कैपिलरी डायलेट हो जाती हैं, तो ब्लड का फ्लो स्लगिश हो जाता है। तो कहीं और भी डाउन, ऑलरेडी पेशेंट का बीपी पहले से कम है 90/70, थोड़ा और कम हो गया 80/60, तो वो पेशेंट को थोड़ा सा अजीब लगेगा, बोले तो उसको सारे सिम्टम लक्षण पैदा होंगे, ये बात है। बाकी टॉनिफिकेशन सेडेशन वाली कोई बात ही नहीं। ओके ओके सर। ऑल्सो सर, एक पेशेंट को नी पेन था, क्रॉनिक नी पेन था, तो उनको पहले मैं एक्यूपंक्चर, मैग्नेट थेरेपी सब वैसे जब करती थी,
तो उसके मतलब इतना रिजल्ट नहीं आता था, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं था। पर जैसे ही कपिंग मैंने इंक्लूड किया तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मोस्टली 95-98% उनको वेरी नाइस। बेटर हो गया है। क्योंकि वेरी पहले एक्सीलेंट रिजल्ट। क्योंकि कपिंग में क्या कर, कई बार हम क्या करते हैं कि हम सही पॉइंट लगाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि हमने एक पॉइंट लगाया, लेकिन मानो कि हमारा रियल पॉइंट उससे 2 मिलीमीटर दूर था, ओके। है ना, तो हमने रियल पॉइंट मिस कर दिया। तो कभी कभी इसलिए भी हमारे रिजल्ट मिस हो जाते हैं। लेकिन कपिंग में क्या करते हैं, हम बल्क एरिया एक बार एक्टिवेट कर देते हैं, तो हमारा, और हम फेशिया तक में एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि फेशिया बहुत स्ट्रेस्ड हो जाता है। तो इसीलिए कपिंग से बहुत फायदा मिलता है, तो हम सबको ऐड करना चाहिए। और आपका ये एक्सपीरियंस भी मोटिवेटिंग है सभी के लिए कि वी शुड ऐड Yes, sir. कपिंग इन आवर ट्रीटमेंट। Yes, absolutely, sir. Thank you. वेलकम। डन एवरीवन। पूजा जी। पूजा जसनानी। हाँ, आवाज आ रहा है सर? जी आ रहा है। हाँ सर, वो मेरे हस्बैंड का जो बताया था ना, एक्सीडेंट हो गया था, तो टीबिया बोन में उसका फ्रैक्चर हुआ था। तो टीबिया बोन की सर्जरी हुई, स्क्रू प्लेट्स तो डाल दिए, लेकिन अभी उसका पैर का स्वेलिंग नहीं जा रहा है अभी तक। देखो, ये पैर का स्वेलिंग कई कारणों से हो सकता है ना। ये कुछ इम्प्लांटेशन किया ना, कुछ रॉड डाली है ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो इंटरनल इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और कई बार डॉक्टर बोलते भी, अभी हमारे पास एक लड़की आई थी, उसके एक्सीडेंट के बाद थाई में रॉड डाली थी, जो अब निकाल दी, मतलब हाँ। कई महीनों के बाद निकाली गई है। तो जब तक रॉड थी तब तक महीने में कभी भी उसको थाई में सूजन आ जाती थी, अच्छा। बिकॉज रॉड एरिया, बिकॉज ऑफ लिटिल बिट इन्फ्लेमेशन क्रिएशन हैपन। तो अच्छा। इट इज हैपनिंग। लेकिन बाद में जब रॉड तो निकालेंगे ना डॉक्टर। हाँ हाँ, उन्होंने बोला है 3-4 साल के बाद आप ये निकाल सकते हैं। हाँ, तो पहले तब तो नॉर्मल हो ही जाएगा, लेकिन उसके पहले भी अभी कुछ समय और होगा तो बॉडी से स्वीकार कर लेगी। अब ये ठीक होने लगा। अभी क्या ना, बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी जाती है ना, तो बॉडी हाँ। इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करती। वहां पर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, स्वेलिंग क्रिएट करती है, वहां पर अच्छा। कभी किसी को डिस्कम्फर्ट भी पैदा करती है, क्योंकि बॉडी को लगता है ये क्या चीज आ गई हमारे अंदर, अच्छा। इसे निकालो। तो ऐसा रहता है। लेकिन आप थोड़ा सा बॉडी से फिर एडजस्ट हो जाती है, कि फिर वो स्वीकार कर लेती है, जब लगेगा यार कुछ हो ही नहीं सकता तो स्वीकार कर लेती है। हाँ। लेकिन आप इस चीज को थोड़ा फास्टर कर सकते हैं। आप जो भी प्रॉब्लम है उसके पॉइंट लगाइए। स्वेलिंग है तो स्वेलिंग अच्छा। लगा दीजिए, लेकिन अच्छा। डिस्टल लगाइए। डिस्टल यानी हाँ। जैसे स्वेलिंग के पॉइंट हम जानते हैं कि स्प्लीन मेरिडियन में आते हैं, ट्रिपल बाउल मेरिडियन में आते हैं, वो लगाइए। K5 लगा सकते हैं? K5? किडनी फाइव हाँ। क्यों नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ, मैं वो करती हूँ, K5 लगाती हूँ, तो लेकिन इतना असर नहीं आ रहा है। और आइस पैक करती हूँ, आइस पैक चलेगा? लेकिन K5 से सूजन कम हो जाएगी, किसने बोला? ऐसे मैंने इसमें पढ़ा, तभी मैंने लगाया। K5 सिंगल पॉइंट है भाई, उसको लगा। स्वेलिंग कम करने के लिए सबसे उनके लिए जो पॉइंट्स हैं वो आपको स्प्लीन और ट्रिपल बाउल मेरिडियन में मिलेंगे। अच्छा, और स्प्लीन है किडनी की बात करें तो किडनी 7 इज द वेरी वेरी गुड पॉइंट हु इम्प्रूव द हाँ, सर्कुलेशन। किडनी। ओके। किडनी 5 तो किडनी का जी कलेक्ट पॉइंट है, ठीक है। हाँ। ये कोई इमरजेंसी तो है नहीं उनको। नहीं नहीं, इमरजेंसी ये तो तो नहीं है। अगर आपको यू नीड टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन, किडनी हाँ। से इज अ गुड पॉइंट। ओके। और स्प्लीन 9 इज वेरी गुड पॉइंट, ओके। स्प्लीन 6 इज वेरी गुड पॉइंट। ट्रिपल वार्मर के 2 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। जिस थाई में हाँ रोड हाँ लगाई उसके अपोजिट हैंड में हाँ जाती है, और ये ट्रिपल हाँ हाँ। 2 पॉइंट लगाइए यहाँ पर। और अच्छा। उनको लोअर बैक एरिया में कपिंग करिए, इवन पूरे बैक में कपिंग कर दीजिए, एक्टिवेट कर दीजिए उस एरिया को। अच्छा, करूँ कपिंग? हाँ। हाँ करिए ना, बिल्कुल। हाँ। ओके। कपिंग जहाँ रोड लगाई वहां करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। कपिंग हाँ, लोअर बैक बैक पे कर सकते हो, बैक पे किडनी पॉइंट पे हम मैं करूँ? आराम से बैक में करिएगा। यस। अच्छा। और बायलैटरल करूँ इसका, ये सीट थेरापी ये पॉइंट्स पे? ये ट्रिपल वार्मर तो अपोजिट साइड में लगा दीजिए, ओके। लेकिन तो स्प्लीन 6 स्प्लीन 9 और जो स्प्लीन के पॉइंट्स है वो बायलैटरल लगा सकते बायलैटरल। थैंक यू सर। हैं। ओके, रत्न पारगी जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर कपिंग किया अभी,
और उसके बाद TCM के पॉइंट्स लगा सकते हैं या सेकंड डे नहीं, कपिंग के तुरंत बाद TCM के पॉइंट लगा सकते हैं। कपिंग से हमने एनर्जी का फ्लो चालू कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, अब हम पॉइंट लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, अगले दिन की जरूरत नहीं जी। ओके, तो चलिए आज के साथ ही हमारी ये क्लास समाप्त होती है, कपिंग पानी चाहे ना। और कुछ वीडियोस मैं आपको मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे अगर मैं बिजी रहा तो ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। ओके, तो एक्चुअली वेबसाइट में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जैसी वो सॉल्व होगी तो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा वेबसाइट में। ओके, अगर 1-2 दिन और लगेंगे, वो वीडियो तैयार है, उसमें हिजामा के बारे में आपको बताया जाए, आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। Maybe I will give one quiz, very general quiz. The purpose of quiz only making your attendance. तो जो लोग क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे उनको सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा। ठीक है, so quiz maybe I will give in the next week, any day, maybe Tuesday or Wednesday. Fine. So thank you so much for this nice journey. Now we'll see you again in some other activities. Thank you so much. Closing the session now.